السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حکومت نے 1.5 سال کے لیے 3 متنازع زرعی قوانین معطل کرنے اور تعطل دور کرنے کے لیے ان قوانین پر بحث کے مقصد سے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے، لیکن کسان قائدین نے فوری طور پر اس تجویز کو قبول نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ داخلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ آئندہ میٹنگ 22 جنوری کو مقرر کی گئی ہے۔ اس سے ایک دن قبل کسان یونین داخلی مشاورت کریں گے۔ دہلی کے وگیان بھون میں تقریباً 5 گھنٹے کی بات چیت بشمول 2 ہفتوں کے بعد 10ویں دور کی بات چیت کے اختتام پر کسان قائدین نے یہ بات کہی۔ بھارتی کسان یونین کے صدر جوگیندر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے 1.5 سال کے لیے زرعی قوانین معطل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ہم نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، لیکن چونکہ حکومت کی جانب سے یہ تجویز آئی ہے، ہم میٹنگ کریں گے اور اس پر غور کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج جو بائیڈن کو امریکہ کے صدر کی حیثیت سے حلف برداری پر مبارکباد دی اور کہا کہ وہ ہند امریکہ شراکت کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پابند ہے۔ مودی نے کہا کہ جو بائیڈن کو ریاست متحدہ امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے پر میری گرم جوشانہ مبارکباد۔ میں ہند امریکہ اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں۔ امریکہ کی قیادت میں ایک کامیاب میعاد کے لیے میری نیک تمنائیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جو بائیڈن کو امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف برداری پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ہندوستانی نژاد کملا ہیرس کو بھی مبارکباد دی، جنہوں نے امریکہ کی 49ویں نائب صدر کی حیثیت سے حلف لیتے ہوئے ایک تاریخ بنائی ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ جمہوریت کے لیے نئے باب پر امریکہ کو مبارکباد، صدر بائیڈن اور صدر ہیرس کو نیک تمنائیں۔ ایک ایسے وقت جب ہندوستانی نژاد کملا ہیرس نے امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر کی حیثیت سے حلف لیا ہے، تمل ناڈو کے 2 دیہاتوں کے عوام نے پٹاخے چھوڑتے ہوئے اور مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے جشن منایا، جو ان کے نانا نانی کا دیہات ہے۔ تمل ناڈو کے تروور ضلع کے دیہاتوں منار گڈی اور تھولا سنترا پورم پینگاناڈو کے درمیان 10 کلومیٹر کی پٹی پر طویل بینر لگائے گئے، جن پر کملا ہیرس کی تصویر تھی۔ اس موقع پر کئی تجارتی اداروں نے عوام میں کملا ہیرس کی تصاویر والے کیلنڈرز تقسیم کیے۔ اتر پردیش لیجسلیٹو کونسل کی گیلری میں ہندوتوا نظریے کے حامل شخص ویر ساورکر کا پورٹریٹ آویزاں کیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن نے ہنگامہ کیا اور اعتراض کرتے ہوئے پورٹریٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس کے MLC دیپک سنگھ نے پورٹریٹ ہٹانے کے لیے چیئرمین کو مکتوب لکھا ہے۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے اس پورٹریٹ کا افتتاح کیا گیا۔ دیپک سنگھ نے کونسل چیئرمین رمیش یادو کو مکتوب لکھتے ہوئے کہا کہ مجاہدین آزادی اور عظیم لیڈروں کی تصاویر کے ساتھ ساورکر کی تصویر لگانا توہین ہے۔ مجاہدین آزادی نے برطانوی ظلم و زیادتیوں کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والوں کو ہندوتوا نظریے کے لوگوں کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے لیو ان ریلیشن شپ کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ شادی شدہ کا غیر کے ساتھ تعلقات رکھنا جرم ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی۔ شادی شدہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ شوہر اور بیوی کی طرح رہتی ہے تو پھر اسے لیو ان ریلیشن شپ نہیں سمجھا جا سکتا۔ عدالت نے موقف اختیار کیا کہ قانونی حقوق کے نفاذ یا تحفظ کے لیے مینڈیٹ جاری کیا جا سکتا ہے۔ کسی مجرم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے عدالت آگے نہیں آ سکتی۔ اگر کسی مجرم کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جرم کو بھی تحفظ دینا ہوگا۔ عدالت قانون کے خلاف اپنے فطری اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ حکم جسٹس SP کیشروانی اور جسٹس YK سریواستو کی ڈویژن بینچ نے ہاتھراس سنسنی تھانے کے علاقے کے رہائشی آشا دیوی اور اروند کی درخواست خارج کرتے ہوئے دیا۔ درخواست گزار آشا دیوی مہیش چندرا نامی شخص کی شادی شدہ بیوی ہے۔ دونوں کے مابین کوئی طلاق نہیں ہوئی، لیکن درخواست گزار آشا دیوی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ نہیں بلکہ بدکاری کا جرم ہے، جس کے لیے اسے مجرم کہا جا سکتا ہے۔ متنازع ویب سیریز اسٹینڈ اپ سے کم از کم 2 سینز حذف کر دیے گئے، جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا اور فلم سازوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک تازہ FIR مدھیہ پردیش میں درج کرائی گئی ہے۔ اس ویب سیریز کے اداکاروں اور ارکان عملہ نے معافی مانگی ہے، جس کے بعد وہ کلیدی کرداروں کے درمیان ہونے والے مکالمے اور ایک ڈرامے کے منظر کو حذف کر دیا گیا۔ اس ویب سیریز کو Amazon پرائم پر پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ سیریز 9 حصوں پر مشتمل ہے۔ فلم سازوں نے کہا کہ انہوں نے ظاہر کردہ تشویش کو دور کرنے کے لیے تبدیلیاں کی ہیں۔ ملک بھر میں اس ویب سیریز کے بائیکاٹ کے لیے ایک مہم چلائی گئی اور کئی مقامات پر FIR درج کرائے گئے۔ ترنمول کانگریس کے چند حامیوں نے کولکتہ ریلی میں بنگال کے غداروں کو گولی مارو سالونکو کا نعرہ لگایا۔ مغربی بنگال میں برسر اقتدار جماعت نے آج اس نعرے سے خود کو لا تعلق قرار دیا اور نعرہ لگانے والے کارکنوں کو ڈانٹ ڈپیٹ کی۔ پارٹی ترجمان کنال گھوش نے کہا کہ پارٹی ایسے نعروں کو پسند نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ ریلی میں یہ نعرہ نہیں لگایا جانا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ TMC کے کئی حامیوں نے
गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोलकाता में अमन रैली के दौरान मुतनाज़ा नारे लगाए थे। रैली में 2 रियासती काबीनी वज़रा ने भी शिरकत की थी। जनवरी 2020 में दिल्ली में बीजेपी के कायद ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों का नारा लगाया था, जिस पर बड़ा हंगामा बरपा हुआ था। तनकीद करने वालों में टीएमसी भी शामिल थी। बीजेपी के रियासती सदर दिलीप घोष ने कहा कि गुज़िश्ता साल भगवा जमात ऐसा नारा लगाकर निशाना तनकीद बनी थी और अब टीएमसी ने भी यही नारा लगाया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने आज कहा कि आसाम में नई बनाई गई एनआरसी में जिन वोटरों के नाम शामिल नहीं हैं, अगर उनके नाम कतई इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं तो वो असेंबली इंतखाबात में वोटिंग कर सकते हैं। अप्रैल मई में आसाम में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आसाम में एनआरसी मरतब की गई है। 31 अगस्त 2019 तक जारी करदा रिपोर्ट में 19,06,657 शहरियों के नाम एनआरसी से खारिज किए गए थे। जुमला 3,30,27,661 दरख्वास्त गुजारों में से 3,11,21,004 नाम एनआरसी में फिर से शामिल किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 29 अगस्त 2019 को मरकजी वज़ारत दाखिला के जारी करदा इलामिया का हवाला देते हुए वजाहत की कि एनआरसी से खारिज होने का यह मतलब नहीं कि इन अफराद को बैरूनी शहरी तस्वुर किया जाएगा। अगर उनके नाम कतई वोटर लिस्ट में शामिल हैं तो इन्हें वोटिंग करने का हक हासिल है। जो बाइडन ने गैर महज़ूब लड़ाई ख़त्म करने, अमेरिकियों को मुत्तहिद करने और दुनिया के साथ अमेरिका के रिश्तों को सुधारने के अज़्म के साथ 4 शुबे को अमेरिका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ लिया, जिसके साथ ही ट्रंप का 4 साला मुतनाज़ा दौर ख़त्म हो गया। जो बाइडन की मियाद के आगाज़ को अमेरिका और दुनिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत करार दिया जा रहा है। उन्होंने अहदे पर अपने पहले ही दिन ट्रंप इंतजामिया के कई फैसलों को उलटने का अमल शुरू कर दिया। जो बाइडन के साथ हिंदुस्तानी निजात कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं नायब सदर की हैसियत से हलफ लेते हुए एक नई तारीख लिखी। वो अमेरिका की पहली खातून नायब सदर होंगी। इस मौके पर 25,000 से ज़ायद नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया था और दारुल हुकूमत को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जानशीन जो बाइडन की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं की और व्हाइट हाउस को खाली कर दिया। ये फ्लोरिडा में अपने मार-आ-लागो स्टेट के लिए रवाना हो गए, जो इनका मुस्तकिल घर होगा। 74 साला ट्रंप ने पहले ही ऐलान किया था कि वो सदर की हैसियत से जो बाइडन की हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिसमें मुतअद्दिद शहरियों और सरकारी अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सऊदी अरब की एंटी करप्शन अथॉरिटी ने रिश्वत सतानी, गबन और अवामी माली मसाइल की लेन देन के मुकदमात दर्ज किए हैं और कई मामलों में सजाएं भी दी गई है। कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी के बाद हेल्थ केयर वर्कर की मौत का पहला वाक़या तेलंगाना में मंजर आम पर आया है। महकमा सेहत हेल्थ वर्कर की मौत को टीके से गैर मरबूत करार देने की कोशिश कर रही है। निर्मल जिले के कंताला प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 42 साला हेल्थ वर्कर को मंगल को सुबह 11:30 बजे टीका दिया गया था। 14 घंटे बाद हेल्थ वर्कर ने सीने में तकलीफ की शिकायत की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकली तक वो जामन न हो सका। महकमा सेहत के अहदेदारों का कहना है कि इब्तदाई जांच में मौत की वजह टीका अंदाजी नहीं है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि 4 शुबे की रात देर गए 2:30 बजे हेल्थ वर्कर ने सीने में तकलीफ की शिकायत की। इसे सुबह 5:30 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। इब्तिदा में तहकीकात में पता चला है कि मौत का टीका अंदाजी से कोई ताल्लुक नहीं है। गाइडलाइंस के मुताबिक डॉक्टर्स की एक टीम पोस्टमार्टम कर रही। हैदराबाद के सरकारी दवाखाना उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को आज कोरोना वैक्सीन दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ की शिकायत की है। एक डॉक्टर ने आज सियासत.com को बताया कि वो वैक्सीन लेने के बाद इसके जिस्म में दर्द हो गया और हल्का सा बुखार भी आ गया था। डॉक्टर को गुज़िश्ता रोज़ वैक्सीन दिया गया था। उन्होंने बताया कि इनके साथ दीगर कई डॉक्टर्स ने भी यही शिकायत की है। ताहम जिस्मानी हरारत मामूल के मुताबिक थी। डॉक्टर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हर वैक्सीन के मामूली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अफराद ने महसूस किए हैं। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स की तौक़ी की जा रही थी और वैक्सीन के बाद उन्होंने तकरीबन 10 अफराद से बात की जिन्होंने ऐसी ही अलामतों की शिकायत की है। टीआरएस पार्टी में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की मुहिम दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। रियासती वजीर सेहत इटला राजेंद्र ने कल केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की वकालत की थी और चीफ मिनिस्टर की तब्दीली को मुमकिन करार दिया था, जिसके बाद टीआरएस सरकार असेंबली और पार्टी कायदीन केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की खुलेआम मुदाफ़ियत कर रहे हैं, जिससे रियासत में टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर बल्दी नजवनस केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की जो मुहिम चल रही थी, इसमें अचानक शिद्दत पैदा हो गई है। पार्टी क़यादत या केटीआर की जानिब से इस पर किसी किस्म का रद्दअमल जाहिर ना करने पर लगता है केटीआर बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर केसीआर के वारिस बनने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने टीआरएस हलकों में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की जो मुहिम चल रही है, इस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर केटीआर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, एक ना एक दिन तो केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनना ही है। उन्होंने कहा कि केटीआर में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर 28 फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर के काम में तेज़ी पैदा कर दी गई है। शहर में बढ़ती ट्रैफिक के पेश नज़र पैदल राहगीरों को सड़क अबूर करने में दुश्वारियों को देखते हुए कॉरपोरेशन ने 20 मुख्तलिफ मुकामात पर फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर का फैसला किया है। ये काम तौक़्क़े है कि आइंदा 3 से 6 माह के दौरान मुकम्मल हो जाएंगे। अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद में ट्रैफिक में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और अवाम को सड़क अबूर करने हत्ता के फुटपाथ पर गुजरने में दुश्वारियों का सामना है। कॉरपोरेशन ने ट्रैफिक के बहाव को तेज करने और पैदल राहगीरों के लिए अलहदा सहूलत के तौर पर फुट ओवर ब्रिजेस का मंसूबा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने आज शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक मदरसे के लापता तालिब इल्म के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इस सिलसिले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। पुराने शहर के इलाके डबीलपुरे से 3 सितंबर को एक मदरसे का तालिब इल्म 12 साल मोहम्मद अकरम अली उर्फ फुरकान अचानक लापता हो गया था। तालिब इल्म की मां नाजिमा बेगम ने पुलिस स्टेशन डबीलपुरे में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके नतीजे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक FIR जारी किया और अगवे का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन पुलिस ने इब्तिदा से ही इस मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया और बादअज़ान तालिब इल्म के वालिदैन को यह जाहिर करवाया कि इनके लड़के की ट्रेन हादसे में मौत वाक़ हो चुकी है और इनके बच्चे की कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी गई है। तालिब इल्म की मां को पुलिस के इस जवाब से इत्मीनान हासिल नहीं हुआ और तेलंगाना हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें पुलिस ने इस्तदलाल पेश किया कि लापता तालिब इल्म अकरम अली की मौत वाक़ हो चुकी है और इस सिलसिले में एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दाखिल की गई। इस रिपोर्ट में कई तजाद पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने इस मामले में अहकामात जारी करने के बजाय दरख्वास्त को खारिज कर दिया था। तालिब इल्म के वालिदैन ने शहर के एक वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त दाखिल की, जिसकी समाअत आज चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने की। बहस के दौरान वकील ने अदालत को वाकिफ कराया कि शादनगर रेलवे पटरियों से एक नाश दस्तियाब हुई थी और इसका पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने इसे दफना दिया था, लेकिन रेलवे पुलिस के FIR में यह वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि वो नाश एक खातून की थी। पुलिस और फॉरेंसिक रिपोर्ट के दरमियान तजाद होने के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हुकूमत बशमुल डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद व दीगर को अहकामात जारी करते हुए अंदरून 4 हफ्ते इस मामले में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। नाज़िमा बेगम ने सियासत न्यूज़ को बताया कि इन्हें हैदराबाद पुलिस पर एतमाद नहीं है और इसकी तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करवाई जाए ताकि हक़ाइक़ का पता लगाया जा सके। तेलंगाना हाई कोर्ट ने LRS और BRS स्कीमात पर हुकुम इल्तवा में तोसी करते हुए हुकूमत के मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अदालत में आज दोनों स्कीमात को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत हुई। इस मामले में एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट में समाअत करने का फैसला करते हुए मौजूदा हुकुम इल्तवा में तोसी कर दी गई। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि क़तई फैसले तक दरख्वास्त गुजारों को कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि राम मंदिर की तामीर के लिए अतिया वसूल करने की मुहिम में शिरकत करने वाले रुकन असेंबली क्रांतिकरण को पार्टी से बरतरफ कर दें। उन्होंने इंडोल के रुकन असेंबली क्रांतिकरण को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने बीजेपी और संघ परिवार की जानिब से राम मंदिर की फंडिंग से मुतालिक रैली में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अवाम से एहतियात हासिल किए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TRS रुकन असेंबली का ये इक़दाम रियासत में TRS और बीजेपी की मिलीभगत को साबित करता है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली कारवान के तहत जियागुरा बल्डी डिवीजन में गंगापुत्रा शमशान घाट की कंपाउंड वॉल के लिए संग बुनियाद रखा। इस पर 20 लाख रुपए की लागत आ रही है। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली कारवान कौसर मुहिउद्दीन, कॉरपोरेटर, गंगापुत्रा तबके के अफराद, धोबी तबके के अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। तरक्याती कामों के संग बुनियाद के साथ आज इस इलाके में तकरीबन 30 साल तनाज़ा का पुरअमन खात्मा हो गया। ओवैसी की निगरानी में गंगापुत्रा और धोबी तबके के अफराद ने तनाज़े की यकसुई कर ली और सदर मजलिस ने इस इलाके में दीगर तरक्याती कामों की अंजामदही की हिदायत दी।